Dear students, today our topic is A Boy Song, which is written by Wilfred Wilson Gibson. In short, we can say W. Gibson. In the opening line of the poem, the poet says that because I set no snare but leave them flying free, means the poet does not want to set any snare. Snare means जाल. To catch the birds. Birds को पकड़ने के लिए. But he wants to leave them flying free. वो चाहता है कि सारे के सारे बर्ड्स जो है वो फ्री, आज़ादी के साथ खुले हवा में उड़ सके. ऐसा वो इसलिए सोचता है. ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, जितने भी एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले बर्ड्स हैं, बिलोंग टू मी, उससे संबंधित है. मीन्स ही वॉन्ट्स टू से टू अस, वो हमसे कहना चाहता है कि अगर वो स्नेहर के अंदर बर्ड्स को ट्रैप कर भी लेगा तो हाउ मैनी, 2, 3, 4, 5, 10, ओके, नॉट मोर देन. बट अगर उसने कोई भी जाल नहीं बिछाया है और किसी भी बर्ड्स को अगर ट्रैप नहीं किया है, तो एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले, एयर में पाए जाने वाले जितने भी बर्ड्स हैं, क्योंकि वो खुले हुए हवा में सांस ले रहे हैं, खुले हवा में सांस लेते हैं, बिलोंग टू मी मीन्स उससे संबंधित है. मीन्स जितने भी सारे पंछी उसे आसपास दिखाई दे रहे हैं, वो कहता है वो सब मेरे ही तो हैं, वो मुझसे ही तो बिलोंग करते हैं. इसलिए वो इन एनी कंडीशंस डज नॉट वांट टू सेट एनी स्नेयर बिकॉज ही वांट्स टू सी ऑल द बर्ड्स फ्लाइंग फ्री. वो चाहता है कि सारे बर्ड्स खुली हवा में सांस ले. क्यों? क्योंकि ह्यूमन की तरह, ह्यूमन बीइंग की तरह एनिमल्स भी फ्रीडम लाइक करते हैं. ओके, थ्रू दिस 4 लाइन्स ही वांट्स टू गिव अ मैसेज कि हमें किसी भी बर्ड्स के लिए कोई स्नेयर को सेटअप नहीं करना है, हमें उनकी आज़ादी को नहीं छीनना है, क्योंकि ऐसा करके हम 2, 3, 4 बर्ड्स को ही ऐसा कर पाएंगे. लेकिन अगर सारे बर्ड्स एटमॉस्फेयर में खुली सांस ले रहे हैं, खुली हवा में घूम रहे हैं, इसका मतलब वो सब हमारे ही तो हैं, हमसे ही तो बिलोंग करते हैं. In the second stanza of the poem, the poet said that from the blue tit on the sloe. Means here the poet takes 2 examples of birds. One of, you can see, blue tit and another one eagle. Okay, so in the first line of the second stanza he wants to say from the blue tit on the sloe, जो एक पेड़ की झाड़ी के अंदर बैठी हुई है, एक ब्लू टीट चिड़िया, यू सी वेरी ब्यूटीफुल बर्ड्स. ओके, एंड 2 ईगल ऑन द हाइट, और ईगल यू कैन सी ही इज फ्लाइंग, ओके, ऑन द हाइट इन द ओपन एयर. दे बोथ आर अनकेज, क्योंकि दोनों ही अनकेज है, दोनों ही ट्रेप नहीं, किसी चाल में नहीं है. सो इजिली दे कम एंड गो, आसानी से वो आ सकते हैं और जा सकते हैं. और टू सी दिस सीन द पोएट, for my delight, means the poet feels a lot of happiness, he realizes a lot of internal joy to see both the birds which are free and they are enjoying their life because they are free, they are not caged, they are uncaged. So that's why they come and go, and to see this scene the poet is very delight, he feels a lot of happiness in his hearts. So you see that in the next stanza he wants to say that so the sunward way towards the sun, means sunward way means towards the sun, means eagle can fly towards the sun, means eagle आकाश के अंदर सूरज की ओर भी उड़ सकता है, सूरज की ओर उड़ता है, वो जाता है. एंड I soar on the eagle wings, और पोएट महसूस करता है कि वो भी ईगल के पंखों पे सवार होकर, eagle wings किस, by help of the eagle wings he soar, means he fly towards the sun, means वो आकाश की बुलंदियों को छू लेता है. he imagines just like he is flying towards the sun by the help of eagle wings. It is possible. Why? Because they are uncaged, they are free.
He wants to say that, and so the sunward way means he can go towards the sunward way towards the sun. I soar on the eagle wings. By the help of eagle wings, he can fly. He can imagine that he is going towards the sun. And in the last two lines of the poem, he wants to say that in my heart all day, means pure din, complete day, in his heart he realizes what? The blue tit sings. The sweet music of blue tit song he can realize 24 hours in his heart. Means he totally enjoy, he totally wants to see all kind of birds flying free in the sky because they feel happy when they are free. So that's why eagle is enjoying, okay, towards the, he's enjoying his life and he's flying in the open sky, and even he is going towards the sunway, and the blue tit, which is a small beautiful bird, is singing a sweet song because she is free, okay. And to see both the kind of scene, the poet feels a lot of joy. He 24 hours realizes, he realizes 24 hours blue tit song in his heart and mind, and he just like that he enjoys his life a lot. The very simple message of the poem is that the poem is about nature precious gift of freedom. ये जो पूरी पोएम हमने पढ़ी, जो सी की छोटी सी पोएम जो 12 तीन स्टेंजा की है, 12 लाइन की, इसके अंदर द पोएट वांट्स टू से दैट कि द नेचर प्रीसियस गिफ्ट ऑफ फ्रीडम, कि हमारे इस नेचर के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण जो गिफ्ट भगवान ने हमको दिया है, डेट्स ए फ्रीडम टू ऑल इट्स इनहेबिटेंट्स, इसमें रहने वाले सभी निवासियों के लिए, ओके। और फ्रीडम वो एंजॉय कर सके, ओके, इजी वे में अपनी लाइफ को वो जी सके। लाइक मैन बर्ड्स, इंसानों की तरह बर्ड्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, वो भी हमारे जीवन का ही एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। बट टू मेनी सेल्फिश पर्सन्स, कनिंग पर्सन्स क्या करते हैं? ट्रैप करते हैं एनिमल्स को, बर्ड्स को, फॉर देयर प्रॉफिट, के लिए वो उन्हें ट्रैप करते हैं और उनकी फ्रीडम को छीन लेते हैं। बट इन दिस पोएम द पोएम एक्सप्रेसेस द पोएट फीलिंग, इस कविता के अंदर कवि की फीलिंग को, ऑफ इंटेंस जॉय, उसकी इंटरनल खुशियों को, विच ही रियलाइजेज, जो महसूस करता है, व्हेन ही सीज ऑल द बर्ड्स, जब वो देखता है सभी काइंड्स के बर्ड्स को, अनकेज एंड फ्री, जो बिल्कुल अनकेज हैं और फ्री हैं, टू फ्लाई फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, प्लेस टू प्लेस, आसानी से वो लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं, ओके। एज वी हैव एग्जांपल ऑफ ब्लू टिट फ्रॉम द ग्रीन ट्री टू द ब्राइट स्काई, बिलोंग टू हिम, सब उनसे बिलोंग करता है, सब नेचर जो सभी का है, इवन मैन का भी है, ह्यूमन बीइंग का भी है, एंड एनिमल्स का भी है, बर्ड्स का भी है, और सभी एनिमल्स इंजॉय कर पाते हैं उनकी लाइफ को, बिकॉज ही डज नॉट सेट एनी ट्रैप, क्योंकि नहीं चाहता है कि वो किसी भी प्रकार का ट्रैप करना, किसी को जाल में अपने फंसाना, फॉर देम, अपने पर्पज के लिए, ओके। सो he very simply wants to give a message to everyone. Dear student, you keep in mind that freedom is a precious gift of God, so we should not trap any kinds of animals, we should love the animals. The poet successfully established an emotional bond, कवि एक सफलतापूर्वक एक अपनी भावनाओं को बॉन्ड करता है, जोड़ता है with the bird, पंछियों के साथ, एंड दस सो, इस प्रकार से शो करता है हिज हैप्पीनेस, उसकी खुशियों को, इन द कंपनी ऑफ बर्ड्स, जैसा कि हमने देखा टू बर्ड्स के एग्जाम्पल के साथ उन्होंने बहुत नाइसली ये अपना एक बॉन्ड, इमोशनल बॉन्ड इस्टेब्लिश किया, किस प्रकार से वो ईगल की हेल्प से आकाश की बुलंदियों को छू सकते हैं, तो अपने हार्ट के अंदर 24 आवर्स वो उस ब्लू टिट के स्वीट सॉन्ग को भी इंजॉय कर सकते हैं। तो कवि का जो मैसेज है, द पोएट वांट्स टू गिव ए मैसेज, वेरी ब्यूटीफुल मैसेज, दैट इन द कंपनी ऑफ बर्ड्स वी कैन एंजॉय अ लॉट, वी कैन फील अ लॉट ऑफ joy in the company of birds. So my message is also by this by the help of this poem, that we should love animals, okay. We should keep kind
We should keep friendship to the birds, and we should be kind, very kind to the birds and animals, because they are also part of our life and they are beautiful creations of the God. So we should not trap any kind of birds. Okay. After I think listen up, and we should learn a lot from this poem, that after learning this poem we always start to a different kind of love towards the birds. Thank you very much.